What's up? Good evening, everyone. Come on. If all of you can hear me and see me, quickly give a 5 in the chat box. Yes, come on, everyone. Tushar, hi. Okay, so good evening, guys. This is me, Sona Sir, your teacher for biology. Welcome to Gradeup. And I hope today you are power packed and ready to learn very interesting concept. Now, सिर्फ ब्रेन इज वैसे तो ये आपको आपके सिलेबस के अंदर पढ़ना होता इफ दिस वाज अ रेगुलर ईयर दिस वाज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑब्वियसली यू नो that this was for this particular academic year was not a part of your syllabus but that also means that इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर नहीं जाना है जो कर सकते हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट तो आसान भी है और जरूरी भी है ना. गुड इवनिंग लक्ष्य. Now, I think the best way to start this lecture is by a question. क्योंकि लोग बोलेंगे why should we study this particular topic? ये तो बोर्ड में हट गया ना. Now, I will tell you why. Okay, I'm going to ask a question. How many colors are there? Very simple question. And I will, at the end of the chapter, at the end of this session, I'm going to tell you exactly the answer. But right now, I want you to tell me कितने कलर्स होते हैं. आप मुझे बताइए एंड इसी सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कितने कलर्स होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद अ क्वेश्चन. हाउ मेनी कलर्स आर देयर? कितने कलर्स होते हैं? चलो लेट आई एम गोइंग टू काउंट. ठीक है, आई एम गोना काउंट लिटिल बिट. तुषार सेज 7. ओके, तुषार सेज 7. Hi Saludin. Ajit. Cooking with Dadi says infinity. Okay. So I have two answers, one in infinity. What about the others, beta? Sir, सिर्फ 3 colors होते हैं. 7, infinity, I think, खुशी. Sir, as we know till now, 7, 1. Primary color or secondary color or all color, any color beta सिया. बहुत कम लोग हैं बेटा, डोंट वरी. देखो सबके लिए हर एक सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो इसलिए 7 विबग्योर 7. ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्टिकिंग विद द नंबर 7 क्योंकि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं व्हाइट लाइट कैन बी ब्रोकन इनटू 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ओके ओके, कम ऑन एवरीवन. 7 colors. Okay, now here is the correct answer and I will tell you, I'll explain you why this is the correct answer. There are no colors. So, there are no colors. Color is something that your brain cooks up. And how does it matter? I will tell you, but only at the end of this lecture में जैसे जैसे हम brain समझेंगे, we'll try to understand, then you will understand कि colors होते ही नहीं हैं. There are no colors. And I'll prove this to you. And I think you'll agree with me at the end of this lecture कि yes sir सही बोला कलर्स होते ही नहीं है. ठीक है, and you'll agree with me. Okay, so let's start our lecture. आज का lecture start करते हैं with the topic brain. So just to give you a brief idea, ठीक है, एक brief idea आपको मैं दे दूं, that is where does brain come into the picture? Brain picture में आया कहाँ से? So if you talk about the nervous system, अगर हम nervous system की बात करें, if you talk about the nervous system, you can clearly see इसके 2 हिस्से हैं, CNS and PNS, right? There are 2 parts, right? One is the CNS, one is the PNS. Now what is CNS? Central nervous system. PNS is the peripheral nervous system. क्या फर्क है दोनों में? Central nervous system बेटा is the डाकिया, is the processing center. PNS, the peripheral nervous system, is the डाकिया. So anything and everything that happens around you, आपके आसपास जो भी चीजें हो रही है, अगर इस पेन को मैं यहां से गिरा दूं, if I hit this, it makes a noise, it makes a sound. This is a stimuli, right? There's a tube light in front of me. Tube light में से light आ रही है, this is a stimuli, right? तो PNS, postman, डाकिया carries that information, the light, the sound, the smell of a biryani or a pizza to the CNS. So CNS is your
प्रोसेसिंग यूनिट, इट आइडेंटिफाइज कि अच्छा ठीक है ये व्हाइट लाइट है, ये स्मेल बिरयानी की है, मम्मी ने आज बिरयानी बनाई होगी, आज तो कुछ भी हो जाए मम्मी को तो परेशान नहीं करेंगे वरना बिरयानी चली जाएगी। ठीक है। सो गाइस व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो वी से वी हैव द सीएनएस, द प्रोसेसिंग सेंटर, जो इंफॉर्मेशन का कुछ मतलब निकालता है, एंड पीएनएस इज जस्ट द कैरियर, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करके ले जाता है सीएनएस के पास ताकि सीएनएस उसका कुछ मतलब निकाल सके। अब आप देख सकते हो मेरे लेफ्ट, अच्छा ये मेरा लेफ्ट है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं राइट में। सो सीएनएस के आप देख सकते हो दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ब्रेन वाला पार्ट, आज हम सिर्फ ब्रेन की ही बातें करेंगे, वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड, वी आर गोना टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। ठीक है। सो वी गोना टॉक अबाउट ब्रेन। बेटा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस इटसेल्फ। ठीक है। किसी ने अभी बोला था एएनएस भी होता है, प्रीतम बेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ पीएनएस इटसेल्फ, इट्स नॉट अ सेपरेट। ठीक है। हालांकि आजकल एक और सिस्टम का हम जिक्र करते हैं, दैट इज द वन दैट्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कनाल, है ना, उसका हम बहुत स्पेसिफिकली अलग जिक्र करते हैं बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ इज स्टैंडिंग आउट दीज डेज, क्योंकि इसके बारे में बहुत नई चीजें पता चल रही है। नहीं बेटा शिवा, वी विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन। आज का लेक्चर बेटा टॉपिक क्या है, ब्रेन, स्पेसिफिकली ब्रेन। ओके, सो विल नॉट टॉक अबाउट द रिमेनिंग पार्ट्स। आपकी स्क्रीन पे जो भी आपको और दिख रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ब्रेन की बात करेंगे, राइट। सो दिस इज ब्रेन। हाउ बिग इज योर ब्रेन? आपको क्या लगता है आपका ब्रेन कितना बड़ा है? व्हाट डू यू थिंक? So guys, how big is your brain? Come on. Okay, let me see where I can write and where I can. Okay, why I cannot write? Guys, just give me one quick moment. Okay, just one quick moment. It looks like I forgot to insert one little cable into my processing unit, which I am going to do just now. Okay, cool. Okay, so if we talk about our brain, अगर हम brain की बात करें, so it is about लगभग 1400 cc, 1400 cc है। 1400 cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, and this is by far the next to largest brain that is possible in any organism. ठीक है, so by far this is very large brain. ठीक है। अब 1400 सीसी की बात करें इन योर ब्रेन, देन वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, है ना, वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स। कैसे 3 पार्ट्स हुए? आप याद करो इन द ग्रेड 9th में हम बोलते थे देयर आर 3 हॉलमार्क फीचर्स ऑफ अ वर्टिब्रेटा, सॉरी कॉर्डेटा, notochord, nerve cord and notochord, nerve cord, pharyngeal gill slits थे। याद करो, ये सब पढ़ा था 9th क्लास में, राइट। सो बेटा ये जो नर्व कॉर्ड थी, इसी के 3 हिस्सों ने 3 अलग अलग चीजें बनाई। द 3 हिस्सा ऑफ दिस नर्व कॉर्ड फॉर्म्ड 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो आगे वाला हिस्सा कहलाया फोर ब्रेन, बीच वाला हिस्सा कहलाया मिड ब्रेन, सबसे नीचे वाला हिस्सा कहलाया द हाइंड ब्रेन। सो दिस नोटोकॉर्ड, ये जो नोटोकॉर्ड था आपका, यही स्वेल कर गया। जो सबसे आगे वाली स्वेलिंग थी, दे गेव राइज टू द फोर ब्रेन, द बीच वाला स्वेलिंग गेव राइज टू द मिड ब्रेन एंड द लास्ट वाला गेव राइज टू द हाइंड ब्रेन। नाउ what are the parts of forebrain, midbrain and hindbrain that you need to know about? आपको इनके कौन कौन से पार्ट्स का पता होना चाहिए। So when we talk about forebrain, जब हम forebrain की बात करते हैं, there are 2 parts, cerebrum and diencephalon. cerebrum क्या है? आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा, right? The largest portion of your brain is cerebrum, लगभग 83% by mass,
आपकी ब्रेन का 80, 81, 82, 83% हिस्सा इज सेरिब्रम। अब आप समझ सकते हो, अगर आपके शरीर में, आपके ब्रेन में 83% हिस्सा सेरिब्रम है, तो दिस 83% must be doing something that makes you so much unique. And I want you people to guess. चैट में guess करो सेरिब्रम का काम क्या है. What's the main function of cerebrum? Come on, give me something. Give me something. What's the main function of cerebrum? बेटा वो इसी पे इंक्लूडेड है बेटा जी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। अब उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और उसी के साथ में होता है ऑल्फैक्टरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली बेटा। सो सेरिब्रम इज द पार्ट, आपका जो सेरिब्रम होता है वो हिस्सा है दैट डज अ लॉट ऑफ इंटेलिजेंट थिंकिंग, कैलकुलेशन, इमेजिनेशन, राइट। सो अ लॉट ऑफ दैट इज डन बाय आपका सेरिब्रम, राइट। सो सेरिब्रम इज अ थिंकिंग सीट ऑफ योर ब्रेन। आप एक पेंटिंग बना रहे हो, वेयर डज इट कम फ्रॉम? सेरिब्रम। You heard your mom shouting. What makes sense of the information that अगर मैं अभी बिस्तर से नहीं उठा तो मम्मी आएगी और मुझे चप्पल जूते पड़ेंगे? The cerebrum tells you कि भैया उठ जाओ, otherwise you are gonna get shoes and sandals, right? So cerebrum analyzes all the information, is the chief analysis guy, makes sense of all the things. Now then we come to the next part, that is diencephalon. अब जो है अगला हिस्सा है diencephalon. What is diencephalon? Diencephalon के 3 हिस्से होते हैं. Let me write that right here. Okay. Diencephalon के 3 हिस्से होते हैं, epithalamus, thalamus and hypothalamus. So we have 3 हिस्सा. We have 3, guys, just give me, let me see कहाँ पे आपको क्या दिख सकता है, because I always have to now think, right? So if you talk about diencephalon, it has got 3 parts: epithalamus, thalamus and hypothalamus. Let's first talk about thalamus, क्योंकि वो diencephalon का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, right? So thalamus is the sorting center. आपके बॉडी को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है. For example, I am right now wearing a watch, I'm wearing a t-shirt, right? I'm holding a pen, but holding this pen does not feel weird. Wearing a t-shirt does not feel weird. But if I were to, let's say today I suddenly started feeling that there's too much of light and I'll start wearing these specs. मैं अब ये specs पहनूंगा. So for a few days ये specs मुझे irritate करेगा. I'll feel very irritated because I'm not used to this. But after a few days my thalamus will learn there's no need of brain to feel that there's a specs on my nose. It will shunt it out. It will remove this piece of information from processing. So thalamus is the part that decides कि कौन सा इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा और जाएगा भी या नहीं जाएगा. So when I'm wearing this watch from 4 months now, this does not send the information to my brain because the brain does not need to know, right? The brain does not need to know. So not only the job of the brain is to know, the job of the brain is also to keep away from useless processing. जिसका आपको काम ही नहीं है उसकी प्रोसेसिंग करके क्या फायदा. So thalamus is a sorting center. Now guys, this is a foundation class. It's not required. Okay, I did some grave error. Just give me one quick moment. I am still using the old logo which shouldn't be there. बेटा ये आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये फाउंडेशन क्लास है specifically for this year. This is a foundation class and this will not be, okay, sorry, my bad, कहाँ गया, ये रहा. Okay, this will not be a part of your syllabus for this particular year. तो उसका टेंशन आप लोग मत लो. अगर आपको
इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो यू डोंट, मतलब ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट अ जरूरी कंपोनेंट ऑफ योर सिलेबस फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर. गिव मी वन क्विक मोमेंट बेटा. Just one. Okay, I'm done. Sorry. Yeah. So guys, where was I? Yeah. So thalamus is the sorting facility. What is the job of epithalamus? Epithalamus with thalamus has a very important gland that is called as pineal gland. बेटा इस साल सीबीएसई में नहीं है, रेगुलर साल में सीबीएसई में होता था, इस साल सीबीएसई ने से हटा दिया फ्रॉम द सिलेबस. ओके, ठीक है, आगे बढ़े. नाउ epithalamus has the pineal gland. Pineal gland secretes the hormone melatonin, and melatonin is important for your biological cycles. Now biological का cycle का मतलब सिर्फ नींद से नहीं है. Biological cycle का मतलब is with almost everything. Your breathing rate, your heart rate. आपने सुना होगा, घर में बहुत बार बोलते हैं कि सोने से पहले do not look at your mobile phones. Why? Because if you're looking at your mobile phones, your pineal gland is confused. It is thinking with that bright light, it is thinking that it is time to give more melatonin because it's daylight, right? So that is why we should try to avoid using all of this. So epithalamus gland का जो हिस्सा है pineal gland, वो आपका biological clock है. अब आते हैं लास्ट, दैट इज हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज द डुअल काइंड ऑफ गाय. डुअल काइंड ऑफ गाय का क्या मतलब है? ओके, हाँ, इसका एक पार्ट नर्वस है. ओके, व्हाट डू आई डू? सो देयर इज वन पार्ट दैट इज नर्वस, देयर इज अनदर पार्ट दैट इज एंडोक्राइन. नर्वस बोले तो जो ब्रेन जैसी प्रोसेसिंग करता है, जैसे कि आपके बॉडी को कांस्टेंट स्टेट में मेंटेन करना. बेटा लक्ष्य, आई विल कम टू दैट. आपके बॉडी को कांस्टेंट स्टेट में मेंटेन करना, टेम्परेचर ज्यादा बढ़े नहीं, ज्यादा घटे नहीं, पानी ज्यादा घटे नहीं, ज्यादा बढ़े नहीं, ग्लूकोज ज्यादा घटे नहीं, ज्यादा बढ़े नहीं, राइट? वेयर एज द एंडोक्राइनल फंक्शन इज टू रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड. अगर आपने नहीं पता तो मैं बता दूं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ योर बॉडी बिकॉज इट इज एबल टू कंट्रोल सो मेनी अदर ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस बहुत तरीकों से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है. ऑल्सो इट मेक्स 2 hormones for pituitary as well. That is why hypothalamus is kind of very important guy. Next we come to the midbrain. Now midbrain is largely a connecting guy. It just connects lower to the upper things, है ना, lower to the upper things, and specifically it is involved with auditory and visual reflexes, है ना. auditory और visual reflexes में ये involve होता है. अचानक से किसी ने यहाँ पे आवाज मारी, आप ऐसे घूम जाते हो, ये काम किसका है? मिड ब्रेन का. ठीक है. कमिंग टू द लास्ट पार्ट दैट इज द हाइंड ब्रेन विच हैज गॉट 3 pons, medulla and cerebellum, right? Pons, medulla and cerebellum. What are the role of these 3 people? So cerebellum has to do with a lot of muscular coordination. Muscular coordination मतलब driving a bicycle. It involves muscular coordination, taking a walk, table tennis, right? So guys, but मैं एक चीज बता दूं, ये मत सोचना कि बाइसिकल ड्राइव करने में बस सेरेबेलम ही काम करेगा. नो, द इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम योर सेरिब्रम. सेरिब्रम बताता है क्या कैसे करना है. सेरेबेलम जस्ट रिफाइन्स इट. सेरेबेलम जस्ट डिस्ट्रीब्यूट्स इट and starts executing the command that has come from cerebrum, not cerebellum. Cerebellum is the executor. It is not the deciding person. वो decide नहीं करता, वो execute करवाता है. ठीक है. गुड इवनिंग वंश. बेटा थोड़ा सा समय पे आएंगे, अगर हम लोग समय पे नहीं आए तो ये शुरुआत का पार्ट छूट जाता है हमेशा. ठीक है. Coming to the second part that is called medulla. Medulla oblongata भी कहते हैं, which is the last part of the brain. यहीं से आपका spinal cord continue होता है, and this is the part that is responsible for involuntary actions. Heart rate control करना, breathing rate control करना, इन सब चीजों को medulla देखता है. Coming towards the last part that we are going to talk about right now, that is pons.
बेटा pons or also known as pons varoli, it is important for again connecting the lower and the higher regions of the brain. ठीक है, so this is how the major brain parts play. ठीक है, okay, अब जो है now what we are going to do is we are going to talk about the initial question, how many colors are there. सर मैं लिख रहा हूं उसमें कौन कौन से पार्ट, बेटा जी कुलदीप 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 सुनो 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 सुनो, पहले बेसिक कवर करें, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, देखो कफिंग वाला पार्ट है, इट इज अ इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, है ना, मेडिला करेगा, राइट. तो अभी मैंने देखो इसीलिए मैं बोलता हूं कि सुनो, देखो अगर आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे ना तो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा, आपको सिर्फ आंसर याद रहेगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप उसका यूज करके बाकी सारे कॉन्सेप्ट कर सकते हो. जैसे एक क्वेश्चन आ जाएगा, आपके आगे सांप गया, आपका हार्ट रेट कौन बढ़ाएगा? मेडुला बढ़ाएगा, राइट. नॉट ओनली मेडुला बट यस मेडुला. मेडुला को सिग्नल कहां से आएगा? अचानक से थोड़ी ना आएगा, सेरिब्रम ही सिग्नल देगा कि भैया बढ़ाओ, आगे सांप है. ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू लिसन टू द कॉन्सेप्ट्स एंड देन आंसर ए क्वेश्चन. नो साधना, नो डिस्टर्बेंस. लक्ष्य बेटा, यू हैड अ क्वेश्चन, कैन यू आस्क इट नाउ? मैं देखता हूं अगर मैं पढ़ पाया तो. Sir, I want to ask one thing. Hypothalamus control pituitary gland or not? हाँ बेटा, it does. Hypothalamus does control pituitary in very explicit ways by releasing hormones known as releasing hormones. ठीक है, जैसे कि GnRH, gonadotropin releasing hormone. इसी तरह आपका CRH, corticotropin releasing hormone. ठीक है, जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा और पिट्यूटरी जो है रीनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है. इसी तरह से बहुत सारे हार्मोन्स हैं जो आपके पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, सो दैट पिट्यूटरी कैन कंट्रोल द अदर ग्लैंड्स. नाउ आई विल बी कमिंग टू माय द ओरिजिनल क्वेश्चन, बिकॉज मैंने बोला था एट द एंड आई विल एक्सप्लेन यू हाउ मेनी कलर्स आर देयर. अच्छा, आई डिड आंसर. ओके, सॉरी, मे बी इट स्लिप. आई थिंक आई डिडंट रिमेंबर कि क्वेश्चन क्या था और फिर मैं पता नहीं आंसर किया था कि नहीं. ओके गाइस, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट. एंड आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ थिंग्स ऑन वन साइड, तो अगर बीच में जाएगा मुझे दिख जाएगा तो आई विल अवॉइड इट. ठीक है, सो गाइस आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो द स्ट्रक्चर ऑफ द आई एंड द ईयर. आई डोंट नो इस बार वो सिलेबस में है या नहीं, बट अभी एकदम सिंपल रखेंगे. देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द आई. सबसे बाहर वाला इज स्क्लेरा, प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द आई. अंदर वाला इज कोरोइड, which makes sure कि internal reflections नहीं होंगे, and the last one is the retina. Now retina has got 2 layers. I don't want you to remember a lot of names, so I'm just gonna go to the layer that actually makes sense. The neuronal layer of retina. The nervous या neuronal, आप जो कह लो, nervous layer of retina. Now nervous layer of retina has got 3 batches of cells. This is first batch of cells. I'm just drawing it vaguely ताकि आपको ज्यादा चीजें याद ना रखना पड़े. इसके बाद there would be another batch of cells. आप देख सकते हो, this is the second batch of cells. ये सब क्या है? ये nervous layer का ही हिस्से हैं, right? And then there is another batch of cells, right? Okay, so there are 3 batch of cells in the nervous layer of retina. Now I am going to spell out their names. आपको रटना नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, बस मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि you kind of make sense of it. ठीक है, the orange layer is known as the photoreceptor layer. The multicolored layer is known as the bipolar neuron layer. मतलब that's made up of bipolar neurons. The white layer is made up of ganglion cells. So three layers. The first layer is photoreceptor neurons. Second layer is bipolar neurons. Third layer is क्या बोला था मैंने अभी? Ganglion cells. See, even I forget. तो बेटा जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जो फोटो रिसेप्टर लेयर है, उसमें जो फोटो रिसेप्टर्स हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं. देयर कैन बी
three possible types of cells. And as you can totally easily guess, those three different types of neurons can be stimulated by three different wavelengths of light. Wavelengths of light. Now, if you do not remember wavelength, I want you to थोड़ा सा go back to your physics. Light का dual nature होता है. It is also particle, it's also a wave. The difference between two heights, two crests, that's called a wavelength, right? So the only difference between a red and a blue color is the wavelength and the energy that it's carrying. Red का wavelength कम होता है, नहीं ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है. ब्लू का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वेवलेंथ कम है, राइट? सो यू जस्ट हैपन टू हैव three different kind of photoreceptor cells, each of which can be stimulated by different batch of wavelengths of light. आपके पास बस तीन डिफरेंट तरह के सेल्स हैं जो लाइट के डिफरेंट वेवलेंथ ग्रुप्स से स्टिमुलेट किए जा सकते हैं. रेड, ग्रीन एंड ब्लू. So all the colors that you see is something that your brain cooks depending upon कितने R, G and B cells stimulate हुए हैं, कितने R, G and B cells stimulate हुए हैं. ये R, G and B वाले जो फोटोरिसेप्टर सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं कोन्स, क्योंकि इनका शेप थोड़ा सा कोन टाइप्स का है. So they are the ones that can detect the colors and you have around 6 million of them. आपके पास लगभग 6 मिलियन ऐसे सेल्स हैं, 6 मिलियन कोन्स हैं जो आपके लिए आपको कलर बता सकते हैं, right? So when your brain gets the information from these cells, when your brain gets information from these different kind of cells, it makes sense of the color that there is. तो बेटा कलर होता ही नहीं है, there is nothing such as color. It's what your brain sees it. This theory was initially given by a scientist called Thomas Young, and it was propagated by a scientist called Helmholtz. So this theory is known as Young-Helmholtz theory, also known as the trichromatic theory. तो कलर को एक्सप्लेन करने के लिए ये सबसे पुरानी बट एक आज भी माने जाने वाली सबसे अमेजिंग थ्योरी है. इसके बाद भी इवन आफ्टर दिस दो और थ्योरी आई थी, ठीक है. एक है ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी, एक है रेटिनिक्स थ्योरी, जो हमारे विजन के कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करती है. बट एज ऑफ नाउ आपके लिए इतना जानना आपको कुछ ज्यादा लेवल तक अंडरस्टैंडिंग दे सकता है ऑफ हाउ योर ब्रेन एंड सेंसेस वर्क. सो वट एवर यू सी, वट एवर यू स्मेल, इट्स नॉट देयर, इट्स वॉट योर ब्रेन मेक्स ऑफ इट. तो वेन यू से roses are red and sky is blue, it's not. सर इसलिए कुछ ऑर्गेनिजम्स कलर नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनके जो सेल्स होते हैं उनमें वो पिगमेंट नहीं है जो एक्साइट हो सकता है. शिवा, देयर सेल्स lack the quantity or the quality of the pigment that can respond to the wavelengths of light. Color blindness, right? So color blindness impacts around 3 million people or so worldwide. ठीक है? So guys, I'm repeating this last concept for today. And what is the last concept? How actually there are no colors. कैसे हमें पता? So we have photoreceptor cells that can detect different group of wavelengths of light. There's a type of cone photoreceptor cells that can detect red, a type that can detect green and nearby wavelengths, and a type that can detect blue. Differential stimulation of these cones give your brain a signal,
and that is why, because okay, Preetham, that's okay. Okay, right? So this is the logic behind it, beta. ये logic है. This is how your brain actually is one amazing organ that is there, right? Okay. So guys, any questions? Something that you want to ask, beta? This is the time that you can. Okay, welcome Shiva, welcome. Okay guys, anything else that you want to ask me, or should I, go over to the questions? Yep, something. हाँ जी बेटा जी, anything that you want to ask? कुछ पूछना है, कुछ समझना है, कुछ जो अभी तक पूरा तरीके से क्लियर नहीं हुआ, ऐसा कुछ? मेंटी सर, मेंटी तो लाओ सर, मेंटी, बिना मेंटी के सर कैसे चलेगा? चलो, let me switch on the मेंटी now. चलो, हाँ जी बेटा जी. Okay guys, the code is there on the top, 2063450. Abhi Thakur sir, you know me, beta, a little bit out of memory. I do not have the sharpest memory. Come on guys, everyone. Okay, don't tell me there is only one person here who is attending foundation biology classes. So what is spinal reflex? The reflex actions that are born in the spinal cord, those are known as spinal reflexes. Cranial reflexes like visual and auditory reflexes, वो आपके मिड ब्रेन से होता है, इसलिए उसको cranial reflexes बोल सकते हैं एक तरीके से. तो बेटा कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है 2063450. कम ऑन एवरीवन. यप यप यप. चलिए आगे बढ़े. हाँ जी बेटा जी. Which of the following should be divided into frontal, parietal, etc. lobes? ओके, ये पार्ट मैंने बताया नहीं, बट देखते हैं किनको पता है. आप हमेशा इवन आपकी एनसीईआरटी फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब्स की बात करते हैं. इवन इन योर एनसीईआरटी इज देयर. सो what should I divide into these lobes? The brain, the cerebral cortex, the cerebellum, or the hind brain? Okay, come on. Give me a little bit notion of this. वेरी गुड. तो बेटा सेरिब्रल, जो सेरिब्रम है आपका, उसको आप फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल रीजन्स में डिवाइड करते हैं. एक फिफ्थ लोब भी डिस्कवर हुआ था जिसको हमने इंसुला कहा था. ठीक है, यू लर्न अबाउट दिस लेटर ऑन. हाउ रेबीज मेक्स अ मैड मैन मैड? बेटा रेबीज वायरस that harms or I think disrupts the functioning of your brain. How exactly it does that? Even I will have to read and explain it to you in the next class perhaps. ठीक है. Second guys. Yep. Which of the following is the homeostat? Good evening Ishrat. बेटा थोड़ा सा लेट. इट्स ओके, वैसे कोई बात नहीं. वी फिनिश बट मोस्ट ऑफ द लेक्चर बेटा आप रिकॉर्डिंग तो देख ही सकते हैं. सो व्हाट इज ऑक्सीटोसिन हार्मोन? बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन हैज गॉट टू मेजर रोल्स. बोथ आर इन्वॉल्व विथ रिप्रोडक्शन इन वन और द अदर वे. एक है सजल उसका, दैट इट बूस्ट द कंट्रैक्शन ऑफ द यूटरस, यानी चाइल्ड बर्थ में. इट्स ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मिल्क लेट डाउन. तो जब द बेबी सक्स द निपल ऑफ मदर, तो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही जो है मिल्क को लेट डाउन यानी रिलीज करवाता है. राइट. तो होम्योस्टैट अगर बोले, कांस्टेंट स्टेट बोले, तो वो हमारा बेचारा अपना नन्हा मुन्ना हाइपोथैलेमस है. सो अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन आवर लिटिल लीडर बोर्ड. मैं दूसरी तरफ जाता हूँ आई गेस, तब शायद बहुत लोग अपने मार्क्स देख पाए. अब मैं बीच में हूँ बट कोई फायदा नहीं है, आई थिंक अभी भी नहीं देख पा रहे हो. ओके, दिस नीड्स टू बी एडजस्टेड बेटर, वरना है ना मुझे और थोड़ा चीजों को देखना पड़ेगा. चलो विल लुक एट दैट. चलिए थर्ड क्वेश्चन गाइस. थर्ड क्वेश्चन,
वेयर डू यू फाइंड द रीजन फॉर डिफरेंट कलर्स? ये हमने पढ़ा है ना. फोटोरिसेप्टर सेल्स इन द आईज, द मिड ब्रेन, द स्क्लेरा, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. बेटा सी देयर आर सेवरल हार्मोन्स जो मेल्स में भी पाए जाते हैं, बट उसका एग्जैक्ट फंक्शन हमें भी नहीं पता, राइट. ऑक्सीटोसिन का कुछ कुछ हद तक फंक्शन हम समझते हैं, बट नॉट वेरी मच. ठीक है. It's involved in a lot of emotional experiences, but to what extent we are kind of loose on that. Come on. Very good. Photoreceptor cells in the eyes, that is the cones, right? सी बेटा प्रीतम, दैट इज द थिंग कि ये जो हम हॉर्मोन्स पढ़ते हैं ऐसा नहीं है कि मेल्स में नहीं होता, राइट, बट देयर फंक्शनल रोल्स आर नॉट क्लियर. फॉर एग्जांपल अभी इधर हाल फिलहाल में पता चला था जो फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, बिसाइड्स the growth part, it's also involved in other things like the sexual urge or stuff like that, right? तो वैसे ही है कि धीरे धीरे वी कीप ऑन गेटिंग इंफॉर्मेशन. एडीएच तो दोनों में इन्वॉल्व है. एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, राइट. ऑक्सीटोसिन का वी नो बट वी डू नॉट नो अ लॉट, राइट. वी नो बट वी डू नॉट नो अ लॉट अबाउट इट. चलिए 4 और 5. सर इट इज डिलीटेड. बेटा बेटा जी डिलीटेड ये चैप्टर जरूर है, बट ये फाउंडेशन क्लास है ना बेटा. दैट इज व्हाई वी वेंट टू द लेवल ऑफ कोन्स एंड रॉड्स, राइट. तो दिस इज अ फाउंडेशन क्लास, ओके. Brain's 80% mass is located in cerebral cortex, cerebellum, midbrain और hind brain. चलिए everyone. अर्श 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 जो स्केड्यूल है वो हर संडे / मंडे आपके टेलीग्राम में अपडेट हो जाता है. एवरी मंडे इट्स अपडेटेड ऑन द टेलीग्राम एंड इट्स ऑल्सो एट द एंड ऑफ ईच ऑफ माई लेक्चर्स, राइट. Sir, brain's 80% mass is located in cerebral cortex. That's absolutely correct. Sir, is there any hormone other than testosterone that is in males now? But testosterone है females में, ऐसा नहीं है, नहीं है. The source is the adrenal gland and not the ovary, but है. अब progesterone नहीं होता, females में है, males में नहीं है, right? So ऐसा नहीं है कि all together testosterone गायब है, बस परसेंटेज कम होता है बेटा, ये याद रखना, ठीक है. Yeah. 5. Last question, guys. चलिए. Diencephalon किसका हिस्सा है? Forebrain, Midbrain, Hindbrain. सिंपल क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट, कुछ घुमाना फुराना कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है. Diencephalon किसका हिस्सा है? निकुंज बेटा जी पढ़ लेते हैं ना, पढ़ने से शायद ज्यादा फायदा मिलेगा, डोंट यू थिंक? चलो, तो Diencephalon इज फाउंड इन कोई बात नहीं बेटा. So yes, Diencephalon is found in the forebrain. Beta, meninges, they are 3 pyometer, arachnoid mater and dura mater. They basically protect the brain by forming a sort of cushioning around it. ठीक है? Okay. So Utkarsh, well done beta, well done, really well done. And guys, मैं हमेशा कहता हूँ if you are in this list, you are doing good, but नहीं है इसका just मतलब है कि करना है, भागना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है. सर फीमेल्स हैव लेस टेस्टोस्टेरोन सो देयर मसल ग्रोथ कैसे होती है? बेटा मसल ग्रोथ में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन इन्वॉल्व नहीं है, बट हाँ टेस्टोस्टेरोन डज इम्प्रूव और यू कैन से इंक्रीज इट, राइट. अब जैसे कि टेस्टोस्टेरोन इज लार्जली लिंक्ड विथ सॉरी जो
मेन बोन स्ट्रक्चर डिफरेंसेस है, दैट इज लार्जली लिंक्ड विद एस्ट्रोजन। फीमेल्स में एस्ट्रोजन है इसलिए बोन्स की प्लेट सील हो जाती है, मेल्स में कम है तो बोन्स की प्लेट सील होने में लेट होती है, इसीलिए मेल्स ज्यादातर लंबे होते हैं। एक एक ये फंडा है, ठीक है। सो टेस्टोस्टेरोन कम है, गायब नहीं है, ठीक है। एफएसएच प्रोलैक्टिन मेल में भी होता है इन लो परसेंटेज, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। एफएसएच लो परसेंटेज में नहीं होता बेटा, एफएसएच को मेल्स में बस दूसरे नाम से कभी काल पढ़ा देते हैं, दैट्स कॉल्ड आईसीएसएच, बट इट इज राइट देयर, राइट। एफएसएच है और वो टेस्टिस में आपका स्पर्म प्रोडक्शन को इनिशिएट करवाता है बाय अगेन इन्वॉल्विंग अदर मॉलिक्यूल्स लाइक एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर एंड स्टफ्स लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो गाइज आई होप कि आप इन सेशंस का यूज उठा पाए, एंड अगर हाँ तो सेशन को लाइक जरूर करना, बिकॉज योर लाइक्स टेल अस दैट यस यू विल वांट दीज काइंड ऑफ सेशंस एंड वी विल ब्रिंग मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ सेशन, राइट। एंड अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है ग्रेडअप का, तो वो जरूर से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। So download it now guys, very important, we are no more Goprep, we are Gradeup now, है ना। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने नहीं किया तो करो और अपने सारे दोस्तों को बताओ, tell them about this app because this can help them you know prepare a lot better, right। and अभी हमारे कोर्सेज पे आपको पता है, हमारे ऐप पे there's a lot of courses that's launched here, and how can you get these courses by taking the subscription, that is the live course Gradeup Super। अगर आप Gradeup Super लेते हैं so you get access to all of those courses, and green card is more about all of practice, right। so this is what you can gain by these subscription। if you have any more questions, नंबर आपकी स्क्रीन पे है 9650052904, you can get access, sorry, you can talk to our people and know more about it, ठीक है। another important thing is बेटा schedule। तो आज हमारे पूरे वीक का schedule खत्म हुआ, ऐसा ही सेम schedule मैं हर वीक संडे मंडे तक टेलीग्राम में डाल देता हूँ, इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये पूरा का पूरा स्केड्यूल संडे मंडे को आ जाता है, ठीक है। सो दैट विल हेल्प यू टू स्टे ट्यून टू ऑल ऑफ द सेशंस दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग हियर, ठीक है। हाँ बेटा ICSH नॉट ISH बेटा, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। व्हाई द नेम वाज चेंज्ड फ्रॉम गोप्रेप टू Gradeup बेटा, वी वर ऑलवेज Gradeup, Goprep was a new thing that we started with, so that is why we came back to the original, that is Gradeup now। okay, चलो, so guys that's me for today, have a good night and चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड डू शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो। ओके, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, डू वेल एंड हैव अ गुड नाइट।